کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا، جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا، تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا۔ میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا۔ ایک کیس میرے پاس آیا، میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے۔ کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر۔ دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے، کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی۔ ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جی گھیو دا گھڑا ہوندے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی۔ وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسی۔ اب کمرے میں سانپ ہے، لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دیکھا۔ اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے، یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسے ہی؟ انہوں نے نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین،
जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ? आपने आजमाया और किसने आजमाया? आपने आपने आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान की आयत है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, क्यों मैं ठीक पढ़ लो, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्वीर सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें, क्या फायदा होगा आपको? आपके वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। बता रहा था इधर से, हाँ, फिर मौजू और रुख, मेरे दर्स का रुख बदल जाएगा, तुम ये बात न करो। घर में चोरियां होती हों, कहते हैं चीजें गुम होती हों, पैसे गुम होते हों, जिन्नात चीजें उठाते हों, ऐसे चोरियां पैसे गुम होते हों, तो अगर लिख के दरवाजों पे लगा दें ये गुम नहीं होते, उसकी वजह है इन कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में जिन्नात शयातीन होते हैं, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। इसलिए ये वजीफा सांप के काटे, बिच्छू के काटे, भेड़ के काटे, किसी जहरीले जानवर के काटे का लाजवाब इलाज है। इसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, जब सांस डूबने लगे, यानी सांस रोककर थुतकार दें, चंद बार ऐसा करें, 3 बार 5 बार 7 बार, सांप के काटे, बिच्छू के काटे और किसी जहरीली चीज के काटे का लाजवाब इलाज है। जी हाँ, घर के सामने से खाल गुजरता है, तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें से कई चीजें घर के अंदर दाखिल हो जाती थी। मैंने हर चौखट का जिक्र बस घर के सामने से खाल गुजरता है, उसके जरिए से कई चीजें घर में दाखिल हो जाती थी। मैंने घर की चौखट पे लिख दिया यही, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये लिख दिया, फिर महफूज हो गए, हो गए। एक बार आपके साथ सहरा में सफर का मौका मिला था, और आपने बड़ा सा बिच्छू था, बिल्कुल पास में गुजर गया था, उसने सहरा में मेरे साथ गए, कहने लगे बैठे, सहरा में साथ गए, वहां बिच्छू बड़े बड़े, सांप, भेड़िए, एक वहां एक सांप होता है, उसका नाम है तीर। हो, मैंने एक दफा देखा उसको, तीर की तरह से शूं करके निकलता है, और बस जिसको काट ले काफी होता है, बंदे गया। तीर का काटा सिर्फ मौत है, कोई उसका तरियाक इलाज नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा तो बिच्छू, अपना वाकया भी मुझे याद है, सुना दो फिर आपका भी सुनता हूं। पीछे कुछ बंदा, कौन खड़ा था पीछे अभी सुनाने के लिए? वो खड़े हैं, 2 हैं, मैं सुनाता। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये मोती हैं, लूट लो। हमारे एक दोस्त है, मुझे कहने लगे जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर आए, बार बार कहा, बार बार। एक कोई कच्ची आबादी, गवर्नमेंट की जमीन पड़ी, वहां लोगों ने जगह ऐसे बस घर बना लिए कच्चे, उसने बनाया हुआ। मैं खैर गया, चंद अहबाब और भी थे, गर्मी थी, उसने, उसके साथ सहरा है, डेजर्ट है, उसने टीलों पे टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई, और उसने कोई सादा सा खाना पकवाया। खैर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते ही मैं जमीन पर पांव रख के बैठ गया, क्योंकि सहरा की रात ठंडी और सहरा का दिन गर्म होता है, और रेत ठंडी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि बिच्छू आ रहा है, एक ख्याल आया, और ये मैं पढ़ चुका था। बस मैंने ऐसे पांव उठाया तो मुझे महसूस हुआ बिच्छू जा रहा। मैंने कहा मोबाइल की लाइट मारो, बहुत बड़ा बिच्छू था, और वो ऐसे तेजी से सफर करके मेरे पांव वाली जगह से गुजर के, उसके पांव लगे हुए थे,
और वो जा रहा, खैर उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया, किस डब्बी में बंद किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी आप बताएं। जी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मैंने आपके जब से मैंने सारे अनजाना सा खौफ था, खौफ। और इसी खौफ का दूसरा नाम यह है बेसुकूनी, बेचैनी। एक खौफ है। कई लोग आगे मुझे कहते हैं दौलत है, रिस्क है, सब कुछ है, पर ये अंदर एक खौफ है, अंदर कोई परेशानी है, इसका कोई हल बता दे। तो कहने लगे मैंने ये लिख के आपके दर्स से सुना था, ये लिख के घर के हर दरवाजे और चौखट पे लगा दिया, उसके बाद खौफ खत्म हो गया। क्यों जी खत्म हो गया? जी ये लिख के मैंने लगाया तो रात को काम में जगह को कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे, सुबह उठ के देखा तो कहते हैं कि घर में एक सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। आजकल सोने की चोरी बहुत हो रही है और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया, रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? जरा सोचे तो सही। एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ, चौथे को। आप सारे वहमी बैठे हैं, मेरे पास वहम के मरीज बैठे हैं मुझ समय। एक वाकया सुनाता हूं आपको। जी डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है, सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मार दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई तो सब ने पानी पिया और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह और वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह और वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें, वो सारे पागल हो गए। पागलों की बस्ती, वो सारे पागल हो गए। और ये दोनों पागल ना हुए, थक गए मुकाबला करते करते। आखिरकार बादशाह ने वजीर को बुलाया कि जी हुजूर, उन्हें कहा तू भी पी, मुझे भी पिला। इन जैसे सारे हो जाए। मैंने आपको पागल किया हुआ है क्या? लोग क्या बता रहे हैं? पढ़ा लिखा तबका मेरे पास बैठा है। आपके खड़े लोगों में से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई साइंस का बंदा है, सारे लोग हैं। ये क्या है? एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरे जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाय हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाले की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, यह सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है।
मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा, नीचे से निकल के वो कन खजूरा जो है वो भाग गया, फिर उसको मार दिया। किस ताकत ने बचाया मुझे? इस आयत ने। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। इसके फायदे तो सुन लिए आपने आज। कोई और है जिसके पास इस आयत का कोई फायदा और कमाल हो, तासीर हो? हाँ जी, जवान बच्चे में किसी जादू कर दिया था, कमर झुक गई थी बच्चे की। मेरे कुलीग ने बताया कि आया चंद बार पड़ी, उन्होंने बच्चे को पढ़ के दम दिया, बच्चे को बिल्कुल सीधी होगी उठी। एक तकरीर होती है जिसमें तकरीर हाँ उसमें खूब मारे जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ददरी के लिए एलर्जी की एक किस्म है जिसमें सुर्ख सुर्ख निशान पड़ जाते हैं। उसके लिए कहते हैं कि मैंने पढ़ पढ़ के उस पे फूंके मारी और वो ठीक हो गए। और कोई बताएगा? हमारी नजर एक ताकत रखती है। चीज मिली हो? खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया, जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है।